Good morning, students. So today we will be starting with a new topic, which is the cardiac cycle and ECG. ठीक है. So starting with the cardiac cycle, what do you actually understand by the term cardiac cycle? कुछ तो समझ में आ रहा होगा नाम से ही, विदाउट गोइंग डीप इनटू द टॉपिक, बस ऊपर ऊपर से ही नाम से कुछ समझ तो आ रहा होगा. साइकिल का मतलब क्या होता है? एनी रिपीटिंग इवेंट, कार्डियक इज एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू हार्ट. So the repeating events occurring in a heart is known as the cardiac cycle. Now what are those repeating events? Heart physiology में हमने क्या देखा था? It is composed of दो आर्ट्रिया है, दो वेंट्रिकल्स है, आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में वॉल्स प्रेजेंट है, जिसको हम लोग आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स भी कहते हैं. फिर ब्लड इजेक्ट होता है वेंट्रिकल से थ्रू दी पल्मोनरी आर्टरी एंड क्या आउटा. उसके बीच में और एक दो वाल्व्स होते हैं जिसको हम लोग सेमी ल्यूनर वाल्व्स कहते हैं. ठीक है. तो हार्ट में एक्चुअली होता क्या है? कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये हम सबको पता है कि नहीं पता है? ऑफ कोर्स पता है. सो व्हाट आर दोज रिपीटिंग इवेंट्स? द रिपीटिंग इवेंट्स आर नन अदर दैन दी कॉन्ट्रैक्शन एंड relaxation. Ab, what is contracting and what is relaxing? Of course, the chambers. Atria contracts, atria relaxes, ventricle वापस contracts, फिर वो भी relax करता है. So, यहाँ पे contraction को हम लोग क्या बोलेंगे? A new word is given, which is the systole. And relaxation is termed as diastole. When atrium is contracting, it is known as atrial systole. When ventricle is contracting, it is known as ventricular systole. Same, when atria is relaxing, it is known as atrial diastole. When ventricle is relaxing, it is known as ventricular diastole. अब ठीक है. So repeating events are contraction and relaxation. पहले आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर वो रिलैक्स करेगा, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो वापस रिलैक्स करेगा. तो ये जो इवेंट है, इनके रिपीटेशन को ही हम लोग बोलते हैं कार्डियक साइकिल. ठीक है. So the cardiac cycle occurs for duration 0.8 seconds. So what are the repeating events? Atrial systole, मतलब atria contracts, again atria relaxes, which is known as atrial diastole. Then ventricular systole. Then ventricular diastole. These are the four events which occur simultaneously. ठीक है. एक के बाद एक. पर when my atrium and ventricle both are relaxing at the same time, then I'll name it as
when these two events occur at the same time, then I'll name it as my joint diastole. तो अब जो रिपीटेशन होंगे इवेंट्स के वो कैसे होंगे? फर्स्ट विल बी माई जॉइंट डायस्टोल, आर्ट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल. है कि नहीं? आ गया अभी समझ में? Now these three events they occur in a series and उसको हम लोग कार्डियक साइकिल बोलते हैं. अभी हमें ये अच्छे से ये इवेंट्स को अच्छे से पढ़ना है. So we will be starting with the most relaxed condition जहाँ पे both atria and ventricles are relaxing, which is known as joint diastole. पहले तो हार्ट बना देते हैं. Now these are the atrioventricular valves. ठीक है. This is my left atrium, this is right atrium. लेफ्ट atrium को ब्लड कौन देता है? जो हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा था. That is none other than my pulmonary vein. ठीक है. लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? टू द बॉडी थ्रू aorta. See, aorta is not present here. पर आपको समझ में आए इजीली, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है. For your understanding only. And then the deoxygenated blood goes to the lungs for oxygenation through pulmonary artery. These are the superior and inferior vena cava. ये हो गया हार्ट. Now, both atrium and ventricle are in relaxed position. दोनों एकदम शांत है. There is no electrical activities which is taking place in heart. दोनों ही एकदम शांत है. When they are in relaxed position, the pressure between the heart, pressure in the heart between the atrium and ventricle क्या होगा? Pressure will be less. We know जब मूव ही नहीं कर रहा है, उसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्शन या कुछ भी फंक्शन नहीं हो रहा है, इट्स रेस्टिंग, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका प्रेशर कम है. We know blood travels from higher pressure to lower pressure. जहां से हाई होगा वहां से एक रीजन को मूव करेगा जहां पे प्रेशर मेरा कम है. अभी हमें पता चल गया कि आर्ट्रियम और वेंट्रिकल दोनों में प्रेशर कम है. तो प्रेशर ज्यादा कहां पर है? कहां पर है? ये जो मेरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया हार्ट तक और लंग से मेरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गए पल्मोनरी वेन के थ्रू, तो ब्लड का प्रेशर जो है वहीं पे ज्यादा होगा बिकॉज इट इज फील्ड विद ब्लड. अब तो यहाँ पे ब्लड नहीं है ना, तो इट इज प्रेशर इसका कम है, रिलैक्स पोजीशन पे है, तो प्रेशर ज्यादा कहाँ पे होगा? इन वेना कवा एंड इन पल्मोनरी वेन. तो जब क्या होगा? तो जब मेरा इनमें प्रेशर पल्मोनरी वेन और वेना कवा में प्रेशर बढ़ जाएगा और आर्ट्रियम में कम होगा, तो द ब्लड विल टेंड टू फ्लो फ्रॉम the pulmonary vein and vena cava to the atrium.
इट विल स्टार्ट फीलिंग, फिर पहले थोड़ा आएगा, फिर ज्यादा आएगा, फिर फुल 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 होता जाएगा. दिस इज हाउ इट वर्क्स नो. तो अब मेरा प्रेशर, सॉरी ब्लड या फिर प्रेशर कुछ भी आर्ट्रियम में फुल हो गया. नाउ माय आर्ट्रियम इज फिल्ड विथ ब्लड. तो जब इसमें ब्लड फिल हो गया तो इट विल नाउ एक्सर्ट अ प्रेशर. When it is filled with blood, it will start exerting its pressure downwards. जिसके वजह से क्या होगा, this valves will open. समझ में आया? फर्स्ट हार्ट में प्रेशर कम था एज कंपेयर टू द पल्मोनरी वेन एंड वेना कावा. वहां प्रेशर ज्यादा था तो ब्लड आर्ट्रियम में आया. अब आर्ट्रियम में ब्लड बहुत ज्यादा फिल हो गया तो वो हेवी हो गया, तो इट विल स्टार्ट पुटिंग प्रेशर डाउनवर्ड्स. डाउनवर्ड प्रेशर की वजह से क्या हुआ, मेरे एवी वॉल्व्स ओपन हो गए. जैसे मेरे एवी वॉल्व्स ओपन हो गए, ब्लड स्टार्टेड फीलिंग द वेंट्रिकल्स. ऐसा नहीं है कि वेंट्रिकल्स था पूरा खाली था, नो. सम रेसिडुअल अमाउंट ऑफ ब्लड हमेशा वेंट्रिकल में प्रेजेंट रहते हैं. इट इज नेवर एम्प्टी. तो जब मेरा एवी वॉल्व्स ओपन हो गया तब क्या हुआ, ब्लड स्टार्टेड फीलिंग वेंट्रिकल्स. बाय दिस वे 70% ऑफ ब्लड विल फ्लो टू वेंट्रिकल. ठीक है, समझ में आया जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है. अभी हम देखते हैं क्या क्या इवेंट्स होता है. ये आपको ओवरऑली समझ में आ गया, राइट? तो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल्स बोथ रिलैक्सिंग. Blood from pulmonary vein and vena cava flows to atrium. Understood? Blood आ गया. फिर क्या होगा, atrium gets filled with blood and becomes heavy. The blood exerts pressure on AV valves, causing them to open. Now 70% blood starts feeling ventricle. पर अभी मेरे जो सेमिलुनर वाल्व्स है दे आर स्टिल क्लोज. सेमिलुनर वाल्व्स आर स्टिल क्लोज्ड. दीज आर द 6 इवेंट विच ऑकर ड्यूरिंग माय जॉइंट डायस्टोल. अब ये जो प्रोसेस है, ये जो इवेंट है, ये कितना देर तक चलता रहेगा, 0.4 सेकेंड. समझ में आ गया? इट वॉज ऑल अबाउट माई जॉइंट डायस्टोल. नाउ व्हाट वाज आवर सेकेंड इवेंट, दैट इज माई आर्ट्रियल सिस्टोल.
सिस्टोल। पहले तो जॉइंट डायस्टोल में दोनों रिलैक्स पोजीशन पे ही थे, अभी आर्ट्रियल सिस्टोल होगा, मतलब आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ऐसे तो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, कोई सिग्नल आएगा, कोई बोलेगा, तब जाके ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा। उसके लिए क्या होता है, द पेस मेकर, किसको पेस मेकर बोलते हैं, SN नोड को। The SN node will generate action potential which will cause the atrium to contract. ये contract करेंगे, समझ में आ रहा है? दोनों रिलैक्स में थे, रिलैक्स पोजीशन में, अब उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। कॉन्ट्रैक्ट कौन करवाएगा, क्योंकि वो तो रिलैक्स में है, उसको तो नहीं पता कि अभी मेरे ब्लड आके फिल हो चुके हैं, अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो ये जो एक्शन पोटेंशियल है और ये जो सिग्नल है, इट विल बी इंड्यूस्ड बाय द SN node, and SN node, the action potential generated by the SN node will cause the atrium to contract. ठीक है, so now my atrium will contract. तो 70% जो ब्लड है वो ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल हैज कम टू द वेंट्रिकल। बाकी जो 30% ब्लड है, बाकी जो 30% ब्लड अभी भी आर्ट्रियम में है, वो क्या होगा, आर्ट्रियल सिस्टोल के टाइम नीचे आ जाएगा। ये जो है ये रेसिडुअल वॉल्यूम है, ये दिस मच अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज द 70% हैज कम ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, रेस्ट 30% has come to the ventricle during arterial systole. अब इसमें क्या होगा, ये कितने टाइम के लिए होगा, 0.1 सेकेंड के लिए। इतना कम क्यों, क्योंकि 70% ब्लड ऑलरेडी वेंट्रिकल में फिल हो चुका है, अब बचा कितना है, 30% ब्लड। 30% ब्लड को यहां तक आने में कितना देर लगेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, बहुत कम सेकेंड्स। तो 0.1 सेकेंड जो आर्ट्रियल सिस्टोल है वो 0.1 सेकेंड के लिए ही होता है, क्योंकि और थोड़ा बचा कुचा ब्लड आर्ट्रिया में रह गया है, जिसको हमें वेंट्रिकल में ड्रेन आउट कर देना है। ठीक है, नाउ अभी क्या होगा, इवेंट्स क्या क्या है, SN node causes atria to contract, atrium contracts, rest 30% of blood flows to ventricle। ठीक है, AV valves are still open, ventricle is still in relaxed state, ड्यूरेशन क्या होगा, 0.1 सेकेंड। ठीक है, अभी समझ में आया आपको? SN node जो है वो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जो सिग्नल देता है आर्ट्रियम को कि अभी तुम्हारा वक्त आ गया, अभी तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट होना ही है। ठीक है, तब जाके आर्ट्रियम को पता चलेगा, अरे हाँ अभी मुझे कॉन्ट्रैक्ट होना है। और इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एवी वाल्व्स देके जो बाकी 30% ब्लड मेरा आर्ट्रियम में रह गया है वो वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब वेंट्रिकल कंप्लीटली फुल हो गया और वेंट्रिकल में फीलिंग नहीं होगा। आर्ट्रियम में जितना ब्लड था वो तो वेंट्रिकल में आ गया, अब और कहीं से तो ब्लड आने वाला है ही नहीं, तो ब्लड मेरा वेंट्रिकल तक आ गया। अभी जो नेक्स्ट इवेंट है वो क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ये जो इवेंट खत्म हो गया आर्ट्रियल सिस्टोल, इसने ब्लड पंप कर दिया रेस्ट 30%, अब इसका टाइम है आर्ट्रियम का कि ये अपना रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि ब्लड नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन का फायदा ही नहीं है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि मेरे जो वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब ये धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट इवेंट ये होगा कि मेरे वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, राइट? तो
वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इसको मैं दूसरे टर्म में क्या बोल सकती हूँ, वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन पीरियड खत्म हो रहा है, वो अभी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वेंट्रिकल का मेरा रिलैक्सेशन पीरियड खत्म हो रहा है, वो अभी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जितना अमाउंट ऑफ ब्लड फिल हुआ है वेंट्रिकल में बाय द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, अब वेंट्रिकुलर का डायस्टोल पूरा खत्म, ज्वाइंट डायस्टोल में भी वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा था, आर्ट्रियल सिस्टोल में भी वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा था, और वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन का टाइम खत्म हो रहा है। ये टाइम खत्म होते वक्त जितना ब्लड मेरा वेंट्रिकल में बचा या फिर फिल हुआ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। EDV, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। किसका डायस्टोल खत्म हो रहा है, आर्टरिया तो अभी सिस्टोल में ही है, तो डायस्टोल किसका खत्म हो रहा है, वेंट्रिकल का। तो डायस्टोल खत्म होते होते जितना भी ब्लड मेरे वेंट्रिकल में फिल होता है या फिर रहता है, उसको हम लोग कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, विच इज 120 ml। आ गया पूरा समझ में, आर्ट्रियल सिस्टोल में क्या होगा। ये अब मैं मिटा देती हूँ क्योंकि आर्ट्रियम अभी रिलैक्स करेगा। Now comes our third event, which is ventricular systole। अब वेंट्रिकल को कैसे पता चलेगा कि अरे इसने कॉन्ट्रैक्ट होना खत्म कर दिया आर्ट्रियम ने, अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसको भी कोई सिग्नल तो देगा ही। तो ये जो ऐसे नोड है, ये अपना एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट करता है, इट मूव्स, विच इज कंडक्टेड बाय, यहाँ पे दूसरा एक है जिसको हम लोग बोलते हैं AB नोड। Through AV node, this action potential will move through the bundle of His to the Purkinje fiber। ठीक ही नहीं, ठीक है। आई मेक अ नीट डायग्राम, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। This one is my tricuspid valve, this is bicuspid। ड्यूरिंग आर्ट्रियल सिस्टोल तो ये खुल गया था ना, तो ऐसे पकड़ लेते हैं, ये तो ओपन हो गया था। बाय द एंड ऑफ आर्ट्रियल सिस्टोल वेनेगा वगैरह नहीं बनाते क्योंकि अभी उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। सो दिस इज माई लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। इसमें क्या होगा,
रेसिडुअल अमाउंट ऑफ ब्लड जो फिल हो चुका है, ठीक है। फिर आता है द 70% ब्लड, which was filled during my joint diastole, and rest 30% blood which was again filled during my आर्ट्रियल सिस्टम, ठीक है। ब्लड ऑलरेडी आ चुका है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट वेंट्रिकुलर सिस्टोल। व्हेन द वेंट्रिकल इज कंप्लीटली फिल्ड विथ ब्लड, द प्रेशर इनसाइड द वेंट्रिकल इंक्रीजेस। पहले तो कम था, अभी इंक्रीज हो गया। राइट और रॉन्ग? पहले ये रिलैक्स पोजीशन में था, इसका प्रेशर कम था, धीरे धीरे कंप्लीटली फिल हो गया तो इसमें प्रेशर ज्यादा हो गया। नाउ अब आप खुद सोचिए ये प्रेशर की वजह से क्या हो सकता है। सोचिए अब नेक्स्ट जो इवेंट है, डायरेक्टली पूरा ब्लड आ गया वेंट्रिकल में। अब जो पहला एक छोटा सा स्टेप होता है वो पहले क्या होगा। ऐसे एकदम से ब्लड तो नहीं निकलेंगे ना, पहले थोड़ा कुछ होगा, उसके बाद फिर थोड़ा कुछ होगा, फिर ब्लड निकलेगा। तो वो जो है यहाँ पे पहला स्टेप क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, ये सबसे पहला था। अभी हम लिख लेते हैं प्रेशर इनसाइड वेंट्रिकल इंक्रीजेस। तो ये जब प्रेशर इंक्रीज होगा ये क्या करेगा, it will lead to the closure of valves. Valves बंद हो गए। Now second event क्या हुआ, first pressure inside ventricle increases, the increased pressure causes closure of both AB valves. इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब मेरे एबी वाल्व जो है वो बंद हो गए। नाउ दिस इंक्रीज्ड प्रेशर विल लीड टू ओपनिंग ऑफ द सेमी लूनर वाल्व्स। The pressure will cause or the pressure will force open semi-lunar valves. Now, when the semi-lunar valves are opened, blood will rush into the aorta and pulmonary artery. जैसे डैम नहीं होते हैं, बड़े बड़े डैम होते हैं, उनमें गेट्स लगे होते हैं, डैम तक तो वो स्टिल होके रहते हैं, फिर जब आप गेट खोल दो तो वो एकदम स्पॉन्टेनियसली बाहर निकल जाते हैं सारे पानी, होता है कि नहीं होता है? सेम ये पहले स्टोर होके था, अब इसमें प्रेशर ज्यादा है, मैंने बंद कर रखा है ये सेमी लूनर वाल्व्स, मैं एकदम से ओपन कर दूं तो दे विल रश थ्रू बोथ दी आउटर एंड पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ ये जो है द रशिंग ऑफ ब्लड थ्रू द pulmonary artery and aorta is known as, क्या बोलेंगे उसको, ejection period। वेंट्रिकुलर इजेक्शन पीरियड भी कहीं कहीं लिखा होता है। ठीक है, इजेक्शन मतलब क्या है, कोई चीज निकल जाना, तो वेंट्रिकल से ब्लड निकल रहा है, तो ऑफ कोर्स ये जो फेज है इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेंट्रिकुलर इजेक्शन पीरियड। अब क्या होगा,
ब्लड निकल गया, ठीक है। नाउ ये खत्म। ये खत्म हो गया, राइट। उसके अंदर तो है अभी ब्लड, वो तो जा रहा है। रेसिडुअल वॉल्यूम इज स्टिल देयर इन वेंट्रिकल। वेंट्रिकल कभी 100% खाली नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे जो रेसिडुअल ब्लड है वो अभी भी है, पर बाकी का जो ब्लड हमने भरा था वो निकल गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर जो है वापस फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। हमें क्या पता है, ब्लड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहाँ पे लो हो गया, यहाँ तो अभी भी प्रेशर हाई है। तो आपको ऐसे नहीं लगता है कि ब्लड वेंट्रिकल में वापस आने की कोशिश करेगा? कर सकता है, क्यों नहीं करेगा। हमें पता है हाई प्रेशर से लो तो पहले वेना कावा और पल्मोनरी वेन से ब्लड आ रहे थे आर्टरियम में। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रेशर ज्यादा था, आर्टरियम में कम था, तब आ रहे थे। अभी जाने के बाद यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो गया, वेंट्रिकल में कम हो गया, तो आपको नहीं लगता है कि देयर इज द चांस कि ब्लड फिर वापस भी आ जाएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ब्लड अपना मतलब क्या, वो अपना फंक्शन चेंज नहीं करेगा। वो इतना नहीं सोचेगा कि अरे मैं वेंट्रिकल में चला जाऊंगा फिर यहाँ से कम हो जाऊंगा, वो इतना नहीं सोचता। उसका काम है वो बहना, वो कहीं भी बहता रहेगा। वेंट्रिकल में स्पेस मिला, वो निकल गया आउटा इसके थ्रू, फिर अब उसको लगता है कि अरे यहाँ मैं वापस भी जा सकता हूं, तो वो अब वापस आ जाएगा। इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए ही हमारे पास ये वाल्व्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो गया है, ये ब्लड जो है वो वापस आएगा। मैं इसको इनलार्ज वे में करती हूँ, ठीक है। ये ऐसा तो नहीं होता है, पर आप लोगों के समझने के लिए ही मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ। बॉल जो है ये ओपन है। अब मेरा ये जो ब्लड जा रहा है इसके अंदर, ये बोलेगा कि मैं वापस आऊंगा, और जब ये वापस आएगा तब क्या होगा, यहाँ पे टकराएगा, राइट, यहाँ पे। नाउ दिस विल कॉज माई सेमी लूनर वाल्व्स टू क्लोज। अब सेमी लूनर वाल्व्स क्लोज हो गए, लो तुम जितना भी वापस आओ तुम अंदर नहीं आ सकते, वहीं से टकरा के फिर आगे जाओगे। समझ में आ गया इतना? क्लियर? ये जो फेज है, जो एसएल वाल्व्स का बंद होना ड्यू टू बैक फ्लो ऑफ ब्लड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। समझ में आ गया इतना आपको? अभी यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज आप और समझ लो। जब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, दिस विल कॉज माई एवी वाल्व्स टू क्लोज। आपने कभी मतलब क्या होता है, वो जो केचप के जो बॉटल्स नहीं होते जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल ही आप समझ लो, उसका जो कैप होता है, जब आप उसको निकालते हैं तो वो एक साउंड कॉज करता है कि नहीं? वो आप सबने सुना ही होगा, ठीक। तो वो एक साउंड होता है जब हम लोग कैप्स निकालते हैं या फिर बहुत प्रेशर में कैप ढक्कन देते हैं, तो एक छोटा सा साउंड होता है, राइट। तो ये जब क्लोज हो जाएगा ड्यू टू प्रेशर, ऐसा नहीं है कि वो धीरे हो रहा है, एकदम बहुत स्पॉन्टेनियसली एकदम हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस होगा जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड। कब प्रोड्यूस होगा? ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ एवी वाल्व्स। साउंड को क्या कहते हैं? लब, ठीक है। ये जो है ये तुम्हारा पहला हार्ट साउंड है। जब एवी वाल्व्स मेरे एकदम प्रेशर के थ्रू बंद होता है, वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग बोलते हैं लब, और ये है फर्स्ट हार्ट साउंड। ये क्या होता है ना, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है एंड लो पिच का होता है, ठीक है। अब
ये मेरे सेमिल्यूनर वाल्व जब बंद होंगे ये वापस में एक दूसरा हार्ट साउंड प्रोड्यूस करेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड हार्ट साउंड। डब और डप जो भी। और ये जो साउंड होगा इट ऑकर्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, पर ज्यादा सुनाई देगा, लाउड होगा, मोर लाउड या फिर हाई पिच। और ये जो साउंड है these can be detected by an instrument known as your stethoscope। स्टेथोस्कोप के बारे में सबको पता है, अब कोई नॉन साइंस बैकग्राउंड के भी को भी पूछ लो वो बता ही देगा कि स्टेथोस्कोप क्यों होता है, हार्ट बीट सुनने के लिए। तो वो एक्चुअली सुनता क्या है, यही लब डब साउंड को ही ये लोग सुनते हैं, ठीक है। तो ये स्टेथोस्कोप के थ्रू एम्पलीफाई होकर हमें जोर से सुनाई देता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दो साउंड, लब और डब। लब तब प्रोड्यूस होगा जब एवी वॉल्व्स बंद होंगे, डब तब प्रोड्यूस होगा जब एसएल वॉल्व्स मेरे सेमिलूनर वॉल्व्स बंद होंगे। ये दो साउंड के अलावा भी हमारे और दो साउंड है जो प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम लोग थर्ड हार्ट साउंड और फोर्थ हार्ट साउंड बोलते हैं। थर्ड हार्ट साउंड वो क्या कब बोलेंगे, जब आर्टरिया से ब्लड वेंट्रिकल में चला जाएगा तब एक साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको थर्ड हार्ट साउंड कहते हैं। फोर्थ उसको तब कहते हैं जब वेंट्रिकल से वो निकल जाएगा। ये जो साउंड है वो स्टेथोस्कोप में नहीं सुनाया जाएगा, उसके लिए दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं विच इज नोन एज फोनोकार्डियोग्राम। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स फोनोकार्डियोग्राम ओनली, यस, ठीक है। अब समझ में आ गया। हार्ट में 4 साउंड प्रोड्यूस होते हैं जो दो इजीली डिटेक्ट हो जाता है, उसको हम लोग फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड कहते हैं विच इज लब एंड डब, ठीक है। इसका क्या होता है, स्टेथोस्कोप के थ्रू हम सुन पाते हैं। बाकी जो दो है विच इज हैपन ड्यू टू द पैसेज ऑफ ब्लड फ्रॉम आर्टरिया टू वेंट्रिकल एंड फ्रॉम वेंट्रिकल टू देयर रेस्पेक्टिव आउटा एंड पल्मोनरी आर्टरी, तब फोर्थ साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग सुनने के लिए दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं विच इज नोन एज फोनोकार्डियोग्राम। इसके चलते आपका पूरा कार्डियक साइकिल खत्म होता है ना, वेंट्रिकल, हाँ इसका ड्यूरेशन मैंने नहीं बताया, आप लोग ने याद भी नहीं दिलाया, ठीक है ना। दिस ऑकर्स फॉर 0.3 सेकेंड्स। अब हम ये तीनों को अभी अच्छे से देखते हैं। और एक चीज मैं बताना भूल गई, कभी कभी क्या होता है ना, ये जो वॉल्व है उनमें कुछ डिफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। डिफेक्ट होने के कारण ये वॉल्व जो है वो कंप्लीटली बंद नहीं होते, थोड़ा कहीं ना कहीं खुला रहता है, जिसके वजह से ब्लड क्या होता है ना, लीक होता है, वेंट्रिकल्स में हो या आउटा या फिर कुछ भी हो, तो वो लीक होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से ना ये जो लब और डब साउंड है वो अच्छे से सुनाई नहीं देता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट मर्मर, ठीक है। अब अभी हम देखते हैं व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड, the amount of blood ejected by each ventricle। ventricular systole के टाइम the amount of blood which is ejected by each ventricle is known as mean stroke volume, जो होता है 70 ml। मैंने क्या बताया था आपको, सपोज मान लो ये मेरा वेंट्रिकल, ठीक, यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, रेसिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट था, फिर जॉइंट डायस्टोल के वक्त जो ब्लड आया था 70% ब्लड, ये वो वाला है, फिर आर्टरियल सिस्टोल के टाइम जो 30% ब्लड आया है ये वो,
तो डायस्टोल के खत्म होते होते हार्ट में एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो कितना होता है 120 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो गया, मतलब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये मेरा चला गया, राइट, मतलब रेसिडुअल को छोड़ के बाकी सब चला गया, विच इज योर स्ट्रोक वॉल्यूम इज योर 70 ml। तो बाय द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना बचा हार्ट में, मतलब कि यहाँ पे पहले था 120 ml, बाय द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, फिर इजेक्शन के टाइम यहां से 70 ml ब्लड चला गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंड होते होते और कितना अमाउंट वेंट्रिकल में बच गया, दैट इज योर 120 माइनस 70, दैट इज क्या 50 ml। दिस इज नोन एज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। Now, what is cardiac output? एक कार्डियक साइकिल में आपका कितना ब्लड निकल रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम, व्हाट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम पर कार्डियक साइकिल 70 ml। तो एक मिनट में कितने बीट्स होते हैं 72 हार्ट बीट, मतलब 72 कार्डियक साइकिल्स हो रहे हैं। So 70 cardiac output is equals to stroke volume into number of heartbeat, which is your 72 per minute. Stroke volume है 70 into 72, that is your 5040 ml, approximately 5 liters. So your cardiac output is 5 liters. क्वेश्चन कभी कभी नीट में ऐसा क्वेश्चन देता है कि आपको एक स्ट्रोक वॉल्यूम दिया गया होगा, कोई अगर उसको एबनॉर्मलिटीज है या फिर कोई एथलेट है तो उसके केस में तो हार्ट बीट ज्यादा होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, तो वो आपको डेटा अलग अलग दे दिया होगा, आपको ये फॉर्मूला डाल के उसका कार्डियक आउटपुट निकालना है। आई होप आप सब निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या देखा कि आर्ट्रियल सिस्टोल हो रहा है 0.1 सेकेंड का, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है 0.3 सेकेंड का, फिर मेरा जो कि जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड का। तो जो आर्ट्रियल डायस्टोल हो रहा है उसका टाइमिंग तो हमने नहीं देखा, और वेंट्रिकुलर जो डायस्टोल हो रहा है उसका भी टाइमिंग हमने नहीं देखा, वो हम दोनों ने मिला दिया उसको, राइट। पर एक्चुअली में पूरे कार्डियक साइकिल में कौन कितना टाइम तक कॉन्ट्रैक्टेड रहता है और रिलैक्स रहता है ये तो हमने नहीं देखा, राइट। अभी हम उसको भी देख लेते हैं। कार्डियक साइकिल मेरा 0.8 सेकेंड्स का है, ठीक है। तो मैं एक सर्कल बना दूंगी और उसको 8 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर लेती हूँ। चैम्बर्स तो 2 है, आर्टरिया और वेंट्रिकल, ये इसमें तो आप एक ही दिखा सकते हो, तो अंदर एक दूसरा सर्कल बना लो। ये आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन शो करेगा और ये वेंट्रिकल्स, ठीक। अभी हमने क्या देखा था, जो जॉइंट डायस्टोल है जिस वक्त दोनों ही रेस्ट में है वो कितने टाइम का था 0.4। तो ये हो गया मेरा जॉइंट डायस्टोल, है कि नहीं। फिर आर्ट्रिया कितने देर तक कॉन्ट्रैक्ट करता है, आर्ट्रियल सिस्टोल कितने देर तक होगा 0.1 सेकेंड। तो दिस विल बी माई आर्ट्रियल सिस्टोल जो 0.1 सेकेंड का है, ठीक है।
इस वक्त तो वेंट्रिकल डायस्टोल में ही है, इसमें भी वेंट्रिकल डायस्टोल में है, यहाँ आर्ट्रियल डायस्टोल में है, जॉइंट डायस्टोल है ना, तो दोनों ही रेस्टिंग में है। फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने टाइम तक है? 0.3 सेकेंड्स। तो नाउ ये हो गया मेरा 0.3 सेकेंड विच इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ये हो गया मेरा वेंट्रिकुलर डायस्टोल, सॉरी आर्ट्रियल डायस्टोल। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो अभी आर्ट्रियल अभी रिलैक्स पोजीशन में ही है, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया, जॉइंट डायस्टोल और आर्ट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। हमने क्या देखा था? हार्ट साउंड लब, वो कब प्रोड्यूस होता है? जब हमारा प्रेशर वेंट्रिकल में इंक्रीज करता है। वेंट्रिकल में प्रेशर कब इंक्रीज करता है? जब उसमें ब्लड फील्ड होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले वो बंद होता है, राइट। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है उससे पहले ही बंद हो जाता है। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? लब। डब वाला साउंड कब प्रोड्यूस होगा? जब वेंट्रिकल से ब्लड सारा निकल जाएगा, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हो जाएगा यहाँ। सो यहाँ पे क्या होगा? मेरा डब साउंड प्रोड्यूस होगा, डब डब जो भी। ठीक, अभी हमने क्या देखा? जॉइंट डायस्टोल जो है 0.4 सेकेंड का, आर्ट्रियल सिस्टोल जो है 0.1 सेकेंड का, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है 0.3। अभी देखेंगे आर्ट्रियल डायस्टोल जो है वो कितने टाइम का है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो है वो कितने टाइम का है। पहले आर्ट्रियल डायस्टोल का चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो जाएगा? 0.7 सेकेंड्स। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना होगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, अब समझ में आ गया आप सबको। सो अभी तक के लिए किसी का भी कोई डाउट? बाय दिस हमारा कार्डियक साइकिल खत्म हो गया। अभी इसके बाद क्या पढ़ेंगे? ईसीजी पढ़ेंगे। किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी। नहीं है तो ठीक है, विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ईसीजी। ECG. What is ECG? It is an abbreviated form of electrocardiogram. ठीक है, अब ECG में क्या लिखेंगे? इसका डेफिनेशन क्या होगा? It is a graphical representation of electrical activity of heart. ठीक है, what is electrocardiogram? कि it is the graphical representation of इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हो रहा है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो एक्चुअली में क्या बता रहा है कि इसका जो रिजल्ट है वो एक ग्राफ पेपर में ही आएगा। ठीक है, तो जो इंस्ट्रूमेंट हमें हेल्प करता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम निकालने के लिए, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू फाइंड और दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मतलब यहां आप कंफ्यूज मत होना, जो ग्राफ है
वो एक्चुअली में ग्राफ नहीं है। जो ग्राफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है ये इंस्ट्रूमेंट है, और जो एक्चुअली में ग्राफ निकलेगा वो ग्राम है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इंस्ट्रूमेंट जो है वो है मेरा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, समझ में आ गया। अभी ये बेसिक सा था कि आपको सब समझना है, डेफिनेशन, इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा, ये आपको हो गया। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं, इसने कहा ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। व्हाट इज दैट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी? मान लो ये मेरा हार्ट हो गया, ये वाल्व हो गए। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मतलब और क्या एक्टिविटी हो रहा है हार्ट में? मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को छोड़ के और तो कुछ नहीं हो रहा है। और कुछ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ यही हो रहा है जो हमने कार्डियक साइकिल में पढ़ा है। क्या हो गया? आर्ट्रियल सिस्टोल, आर्ट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और what one is your ventricular diastole। ये जो कॉन्ट्रैक्सेशन एंड रिलैक्सेशन है ये तो कॉन्सिक्वेंस है। अब कोई सपोज फैन को ही समझ लो, ठीक है, फैन मूव कर रहा है, ये तो रिजल्ट हो गया, राइट? ये कॉन्सिक्वेंस है। बट किसने मूव कराया ये फैन को? स्विच ने। मैंने स्विच को ऑन किया, दैट इज द सिग्नल विच आई इंड्यूस्ड द फैन टू मूव, तब जाके फैन ने मूव किया। तो ये जो सिस्टोल डायस्टोल हो गया ये तो रिजल्ट है। आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, ये रिजल्ट है। पर इसको करवाता कौन है? सिग्नल्स, एक्शन पोटेंशियल जो होते हैं, ठीक है, ये जो है वो रिजल्ट है। और मैंने आपको क्या लिखा था डेफिनेशन में? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं है, ये रिजल्ट है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होने के बाद इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ये सब करवाते हैं। तो जो ईसीजी आप में ग्राफ दिखेंगे ना, वो सिस्टोल डायस्टोल का एग्जैक्टली ग्राफ नहीं है। ये इसको, ये जो चार इवेंट को जो इंड्यूस करता है वो है ईसीजी का ग्राफ, वो डिनोट करता है, ठीक है। तो आर्ट्रियल सिस्टोल मतलब आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको कार्डियक साइकिल में बताया ना, कौन जनरेट करता है? कोई नहीं, अपना हेडमास्टर कौन सा है? ऐसे नोट, उसका कुछ भी रोल नहीं है, पर उसका सब कुछ रोल है। सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए वो एक छोटा सा एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा, उसके वजह से सब कुछ एकदम लाइन पे चल रहा हो। सच में यही तो होता है, ठीक है। तो ऐसे नोड क्या करेगा? पहले एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, ये हार्ट के मसल तक फैलेगा, फिर इसको कौन कंडक्ट करेगा? एवी नोड। ऐसे नोड के एक्शन पोटेंशियल की वजह से आर्ट्रियल सिस्टोल हुआ, ठीक है। फिर आर्ट्रिया अपने आप रिलैक्स करेगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कौन करवाएगा? ये एवी नोड से जब मेरे बंडल ऑफ हिश देखे पुरकिंज फाइबर तक जाएगा। अब ये क्या करेंगे? दिस विल कॉज वेंट्रिकुलर डायस्टोल, सॉरी वेंट्रिकुलर सिस्टोल। समझ में आ गए? तो यहां से जो जनरेट होता है एक्शन पोटेंशियल, उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन। आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन और आर्ट्रियल सिस्टोल, ये दो जो इवेंट है ना, उसको होने में बीच में एक थोड़ा टाइम गैप है।
बहुत नैनो सेकेंड्स का ही आप सोच लो, ठीक है। डीपोलराइजेशन क्या होता है हमें पता है, जब कोई बाहर से सोडियम आयन अंदर आ जाए तो इसको हम लोग डीपोलराइज स्टेट कहते हैं। सोडियम आयन जब मसल के अंदर आ जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग डीपोलराइज स्टेट कहते हैं। और सोडियम आयन्स के अंदर आने के वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन बाहर निकलता है, और ये कैल्शियम आयन के बाहर निकलने के वजह से ये जो मेरा मसल फाइबर है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी समझ में आया डीपोलराइज होने में और सिस्टोल होने में जो टाइम गैप है वो कहाँ कंज्यूम होता है। तो डीपोलराइजेशन जो है वो सिग्नल है, सिस्टोल जो है वो सिग्नल का आउटपुट है, वो रिजल्ट है। समझ में आ गया? तो बस यही आपको समझना है। पहले हो जाएगा मेरा आर्ट्रियल, हाँ, और हाँ, जब जो सिग्नल मेरा कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा उसको हम लोग बोलते हैं डीपोलराइजेशन, और जो रिलैक्सेशन करवाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रीपोलराइजेशन। कैसे याद रखेंगे? आर से रिलैक्स, आर से रीपोलराइजेशन, तो ऐसे याद रखना है। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कॉजेज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन कॉजेज वेंट्रिकुलर डायस्टोल। खत्म। ये मैंने पहले बता दिया ताकि आप सब रिलेट कर पाए। तो क्या होता है, बेसिक जो कंपोनेंट ऑफ ईसीजी वो क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो मशीन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो मशीन है वो जो आउटपुट निकालता है, वो जो ग्राफ पेपर, इसमें ऐसे जो ग्राफ निकलता है, दिस इज योर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और भी क्या यूज होता है, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को डिटेक्ट करता है, तो वो क्या हो गया हमारा लीड्स, ईसीजी लीड्स। ये जो है वो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ना, ये उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ये डिटेक्ट करके कंप्यूटर को भेजेंगे, सॉरी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को भेजेंगे, फिर वो आउटपुट निकालेगा बाय इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ये जो ईसीजी लीड है वो दो तरह के होते हैं, एक है लिम्ब लीड, दूसरा हो गया चेस्ट लीड। लिम्ब लीड मतलब जो आर्म्स और एंकल वगैरह इस पे लगेंगे उसको क्या बोलते हैं, लिम्ब लीड। चेस्ट लीड जो चेस्ट पे लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं चेस्ट लीड। तो इसमें क्या होता है, 3 जो है वो हमारे लिम्ब लीड से, 6 जो है वो हमारे चेस्ट लीड से। तो मान लो मैंने ये कोई इमेजिनरी सा इंसान ड्रॉ कर दिया है जो आया है अपना ईसीजी कराने के लिए, ठीक है। इमेजिनरी इंसान कोई भी, ठीक है, वो आया है ईसीजी कराने के लिए। अब वो लेटा हुआ है स्ट्रेचर पे, अब उस पे लगेंगे ईसीजी लीड्स। कहाँ लगेंगे, क्यों, वहां पे ही क्यों लगेंगे वो आपको नहीं सोचना है, कहाँ पे लगेगा आपको यही याद रखना है। 3 हमारे हो गए लिम्ब लीड्स जो लगेंगे दोनों आर्म्स पे और लेफ्ट एंकल पे। पेशेंट का, मेरा क्यों लगेगा, पेशेंट का लगेगा, ठीक है। और जो ये हो गया हमारा हार्ट, थोड़ा
एड्रेनल जैसे नहीं बन गया, किडनी टाइप है। चलो इसको हार्ट ठीक है, इसको हार्ट ठीक है, ये हार्ट हो गया। और जो मेरे 6 चेस्ट प्लेट्स है वो यहाँ पे प्लेस हो जाएंगे। अब ये सब मिलके कहाँ लगेगा? इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ, जहां से क्या निकलेगा? ये वाला ग्राफ। समझ में आ गया? 2 तरह की लीड होते हैं, लिम्ब लीड, चेस्ट लीड। लिम्ब लीड जो है वो हाथ पे और एंकल पे लगेंगे, दोनों रिस्ट पे और एंकल पे, लेफ्ट एंकल पे। और जो चेस्ट लीड होता है, देयर आर 6 चेस्ट लीड्स जो अराउंड दी हार्ट प्लेस्ड होंगे, यहाँ चेस्ट पे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आप सबने मूवीज वगैरह में देखा होगा, काफी टाइम जब एक्टर और एक्ट्रेस जो हॉस्पिटलाइज हो जाए कोई ट्रॉमा की वजह से, उसकी साइड पे एक मॉनिटर रखा होता है जिसमें एक अजब सा साउंड करके नहीं आता है, वो पिप पिप टी। जब वो मर जाता है तो वो एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाता है। तो भले ही आपको ईसीजी के बारे में नहीं पता है, लेकिन आपको इतना पता है, मूवीज में देखा है हमने, पहले तो ग्राफ ऐसे चल रहा होता है, पिप 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 ऐसे चल रहा है, मतलब वो जिंदा है। ऐसे ऐसे लाइन हो गया, पी ऐसा साउंड आएगा, मतलब हमें पता चल जाता है वो मर गया है। हमें ईसीजी के बारे में कुछ नहीं पता, मूवीज ने सिखाया है, हमें इतना पता है। ठीक है, तो ये होता है ईसीजी का ग्राफ, ऐसे ही आता है। अभी हम क्या करेंगे, एक कार्डियक साइकिल में कैसा ग्राफ होता है हम वो चेक करेंगे। एक कार्डियक साइकिल में ना ऑलमोस्ट इतना ही होता है, ये थोड़ा मैंने मैनिपुलेटिव बना दिया, इतना। तो अभी हम इतने ही ग्राफ को स्टडी करेंगे। पहले क्या होता है, हार्ट जो है जॉइंट डायस्टोल के वक्त वो एकदम मस्त अपना शांति में रिलैक्स कर रहा होता है, कोई चिंता नहीं उसको, एकदम वो रिलैक्स कर रहा है। सडनली जॉइंट डायस्टोल के बाद क्या हो जाएगा, ऐसे नोड अपना एक्शन पोटेंशियल चालू कर देगा। सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ शांत है, आप सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, आप क्लास कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है। सडनली वहां पे कोई ऐसे गिरा देगा या फिर कोई एक गाड़ी आएगा, बहुत जोर से साउंड करेगा, स्पॉन्टेनियसली सब चुप है, सडनली ऐसा हो जाएगा, तो आप सब डिफ्लेक्ट तो होंगे। तो ये जो है ये एक सेंट्रल लाइन मान लो, ठीक है, ग्राफ का जो लाइन है। अब मैं ग्राफ तो नहीं ड्रॉ कर सकती, राइट। तो पहले वो रिलैक्स में था, सब सही, सडनली यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, तो मतलब थोड़ा डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन होने के बाद थोड़े टाइम के लिए शांत होगा। ये जो पहला डिफ्लेक्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी वेव। और ये जो एक्शन पोटेंशियल है वो क्या करवाता है, आर्टरियम के कॉन्ट्रैक्ट कराता है, कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरियम। पर ईसीजी में कॉन्ट्रैक्शन शो नहीं करता है, वो सिर्फ ये जो एक्शन पोटेंशियल है, ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट में हो रहा है, वो सिर्फ उसी चीज को ही शो करेगा, कॉन्ट्रैक्शन को शो नहीं करेगा, रिलैक्सेशन को शो नहीं करेगा, जो करवाता है उसको शो करेगा। मतलब ये जो एक्शन पोटेंशियल है इसको क्या बोलेंगे, आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन। तो मेरा टी क्या डिनोट करता है, आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन। अब ये थोड़ा देर आने के बाद थोड़ा नीचे जाएगा, फिर बहुत ऊपर उठेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर अपनी लाइन पे आ जाएगा। ये वेव को क्या बोलेंगे, क्यू आर एस। ये एक ही वेव है, आपको ऐसा नहीं समझना है कि नीचे आ गया तो वो एक है, ऊपर गया दूसरा है, नीचे आया तीसरा है, फिर लाइन पे गया चौथा है, नहीं। क्यू आर एस एक ही वेव है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। इसने, ये वेव ने शो किया आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन। तो मतलब क्या हुआ, मेरा आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो दिमाग लगाए
तो ये QRS मेरा क्या शो करेगा, क्या शो करेगा? आर्टेरियल रिपोलराइजेशन? ना ना ना, आर्टेरियल रिपोलराइजेशन यहाँ मेरा शो नहीं करेगा, उसको स्किप कर दो। उसके बाद वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, तो ये क्या शो करेगा मेरा? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। आर्टेरियल रिपोलराइजेशन क्यों शो नहीं करेगा वो भी बताऊंगी, ठीक है, पर थोड़ी देर के बाद। ये हो गया मेरा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अब ये जाने के बाद फिर ऐसा एक वेव आएगा, फिर ये स्ट्रेट जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं टी वेव। टी क्या शो करेगा मेरा? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। अब सुनिए मुझे अच्छे से, ऐसे नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, आर्टेरियल डीपोलराइजेशन हुआ, विच कॉजेस आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन, मेरे आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट कर गए, ब्लड आ गया यहाँ सब, अब वो आराम से रेस्ट में जाएगा, ठीक। मतलब जब तक वो रेस्ट में कब जाएगा? जब पूरा ब्लड यहाँ तक आ जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा, तब तो वो रिलैक्स में जाएगा ना। ब्लड मेरा आ गया वेंट्रिकल में सब, अब धीरे धीरे आर्टेरिया रिलैक्स होते जाएगा, बट तब तक क्या मेरे वेंट्रिकल्स इस चीज का वेट करेंगे कि अरे आर्टेरिया भाई तुम एकदम रिलैक्स हो जाओ फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट करूं? करेंगे? क्यों करेंगे? कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, सब अपना अपना करेंगे। तो ब्लड मेरा वेंट्रिकल में फुल है, मतलब प्रेशर ज्यादा हो रहा है, धीरे धीरे प्रेशर ज्यादा हो भी रहा है, यहाँ से ब्लड खाली हो गया, इसका प्रेशर कम रहा है, ये अपना रिलैक्स हो रहा है। तो वेंट्रिकल जो मेरा है क्या वो वेट करेगा कि आर्टेरिया रिलैक्स होने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट करूं? ना ना, जब तक ये मेरा रिलैक्स हो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, ये रिलैक्स हो रहा है। कैसे हो रहा है? ये जो एबी नोड है यहाँ से लाएंगे फिर पुर्किंज फाइबर तक जाएगा, तो ये जो एक्शन पोटेंशियल है ना, ये जो कॉन्ट्रैक्शन का वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का जो पोटेंशियल है, एक्शन पोटेंशियल, वो रिलैक्सेशन से बहुत ज्यादा है। तो उसका जो पोटेंशियल है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का, वो मास्क करता है आर्टेरियल रिपोलराइजेशन को। उसके क्या उसका जो पोटेंशियल है ना, एक्शन पोटेंशियल रिलैक्स करने का, उसको मास्क कर देता है। तो हमारा ईसीजी लीड्स में क्या आता है? ये वाला डीपोलराइजेशन का जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो ही डिटेक्ट हो पाता है, ठीक है, क्योंकि दोनों ओवरलैप हो रहा है। जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ये रिलैक्स हो रहा है, तो इसका जो पोटेंशियल है वो कम है, पर कॉन्ट्रैक्शन का पोटेंशियल है जो वो ज्यादा है, तो ईसीजी में यही कैप्चर हो पाता है, ठीक है। फिर एक बार मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ब्लड सब चला गया, वो रिलैक्स होगा, उसको फिर से जनरेट करना है। तो वो जो टी वेव है वो क्या काउंट करता है? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। मतलब यहाँ पे वेंट्रिकल धीरे धीरे अपना रिलैक्स होता जाएगा। एक बार नीट में ये क्वेश्चन आया था कि द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स, क्वेश्चन में यही था कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, वेंट्रिकल रिलैक्सेस, आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, आर्ट्रियम रिलैक्सेस, ऐसा कोई ऑप्शन और भी दो था। मतलब जो मैंने आर्ट्रिया का बताया उसके प्लेस में कुछ और था, मुझे याद नहीं आ रहा है, बस मुझे इतना याद है यही था कि टी वेव के खत्म होते होते आर्ट्रिया जो है, सॉरी वेंट्रिकल जो है वो किस स्टेट में होगा? कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होगा कि रिलैक्स स्टेट। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? टी वेव मार्क्स वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो अभी आपको लगेगा टी वेव में वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन का सिग्नल आ गया है, तो मतलब बाय द एंड ऑफ टी वेव वेंट्रिकल मेरा जो है वो रिलैक्स कर रहे होंगे, पर वो गलत है। क्यों गलत है मैं ये बताती हूँ। एसएन नोड ने जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, आर्ट्रियम को डीपोलराइज होने में और आर्ट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, राइट? सोडियम अंदर आएगा, दैट विल कॉज माई ER टू रिलीज कैल्शियम आयंस,
नाउ कैल्शियम आयंस विल कॉज द मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सबको होने के लिए तो थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, राइट। तो मेरा ये जो पोटेंशियल है, जो सिग्नल है, वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, बट मेरा जो एक्चुअल में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो थोड़ी देर के बाद स्टार्ट हो रहा है, यहीं से लेके पूरा क्यू तक। समझ में आया आपको? सेम फॉर क्यूआरएसटी, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन हो रहा है क्यू से, बट उसको डीपोलराइज होने में और एक्चुअली वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने में शायद वो यही से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है थोड़े टाइम में, यहां से लेके पूरा टी तक, यहीं तक। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट। तो मैंने क्या बताया, जैसे कि यहाँ पे टी वेव में मेरा वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन का सिग्नल आ गया है, यहाँ पे मेरा सिग्नल आया, बट रीपोलराइजेशन यहीं से स्टार्ट होगा, मतलब एक्चुअली में जो रिलैक्सेशन पार्ट है वो यहीं से स्टार्ट होगा, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन जो है, और एल्स बाय द एंड ऑफ टी वो कॉन्ट्रैक्टेड फेज में ही है, उसने जनरेट कर दिया। जैसे मैंने स्विच दबा दिया, फैन ऑन हो गया, अब मैंने तुरंत स्विच ऑफ कर दिया, तो इसको अपना स्पीड कम करते 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 बंद होने में टाइम तो लगेगा ही, राइट। तो इसमें भी वही हो रहा है, टी वेव ने अपना पोटेंशियल चालू कर दिया कि अभी वेंट्रिकल को रिलैक्स होना है, अब ये जो कॉन्ट्रैक्टेड फेज में है इसको अभी धीरे धीरे कम होते होते रिलैक्स स्टेट में आने के लिए टाइम लगेगा। तो बाय द एंड ऑफ टी वेव मेरा वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड फेज में ही है, ठीक है। ये हो गया आपका ओवरऑल ईसीजी। इसमें क्या होता है, बहुत सारे डिफेक्ट जो है रिलेटेड टू हार्ट, वो सभी आपको पता चल जाएगा जब एक डॉक्टर ईसीजी का जो ग्राफ है जब वो चेक करते हैं, उनमें उनको बहुत सारे डिफेक्ट्स के बारे में पता चलता है। जैसे कि ये टी वेव अगर मेरा इतना ना हो कि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा, जब टी वेव बड़ा हो जाएगा, एनलार्ज टी वेव, ठीक, टी वेव ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मतलब देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ आर्टरिया, ठीक है। अब सपोज मान लो मेरा क्यूआर जो है वो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, या फिर ये एसटी जो है ये ऐसे ना होके एलिवेट हो गया लाइन से ज्यादा, एसटी सेगमेंट जो है ये ज्यादा एलिवेट हो जाए, या फिर मेरा क्यूआर जो है वो ज्यादा बड़ा हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। समझ में आ गया? तो इसमें क्या होगा, आप ये ईसीजी ग्राफ देख के नंबर ऑफ हार्टबीट बता सकते हैं। नंबर ऑफ हार्टबीट मतलब कितनी बार आपका हार्ट बीट कर रहा है। कैसे? द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पर मिनट मार्क्स द नंबर ऑफ हार्टबीट पर मिनट, ठीक है। अब ये आपको क्लियर हो गया ईसीजी के बारे में। आई होप आप सभी ही क्लियर है इस टॉपिक से, बोथ कार्डियक साइकिल एंड ईसीजी। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। यहीं से बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जब पी वेव इंक्रीज, वैसे तो नीट में ऐसा कम आता है, बट जिपमर और एम्स में आप देखेंगे तो ये थोड़ा ज्यादा आता है कि पी वेव एनलार्ज हो गया तो क्या हो गया, तो ग्राफ कैसे है, मतलब क्या डिफेक्ट है। क्यूआर इंक्रीज हो गया, एसटी एलिवेट हो गया, एसटी अब बिलो द लाइन आ गया, मतलब डिप्रेस हो गया, तो मतलब उसमें ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गया, ठीक है। ज्यादा एलिवेट हो गया मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब वो जो टिश्यू है वो मतलब हार्ट मसल्स आर डेड। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस आएंगे
और पी वेव क्या डिनोट करता है, एंड ऑफ टी वेव क्या डिनोट करता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या डिनोट करता है, आपको सिर्फ इतना ही आएगा. ठीक है. आई होप यू ऑल आर क्लियर. सो थैंक यू सो मच गाइज. कुछ अगर डाउट है तो यू कैन आस्क मी. ठीक है. So this was all about the cardiac cycle and ECG. Thank you so much.